zeros of the polynomial. Third one is remainder theorem, and fourth one is factorization of polynomials, and fifth topic is algebraic identities. Now let's start. Constants and variable. Constants, a symbol having a fixed numerical value, is called constant, and variable, a symbol which may be assigned different numerical values, is known as variables. Means a symbol having fixed numerical value like 3, 4, 5, a, b, c, these are called constants. And variables, a symbol having different numerical values like x, y, z. कभी इनकी वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, -1 हो सकती है. That's why it is called variable. Next, algebraic expressions, a combination of constant and variables connected by some or all of operations plus, minus, into and divide is known as algebraic expression. After this, we will study terms. Several parts of an algebraic expression separated by plus or minus are called terms. Means terms is the part of algebraic expression. It means algebraic expression father है तो term हो गया son. Okay. Now just like we have 5x square minus 4x square minus 6x minus 3 as an algebraic expression in which 5x square minus 4x square, these are called two different terms separated by plus or minus. Okay. Now next, polynomials. Polynomials, an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral powers. It means algebraic expression में अगर x, y, t ये जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और वो भी इंटीजर्स के फॉर्म में. मीन्स -1, -2, -3 नहीं हो सकती, 1/2, 3/2 रूट में नहीं हो सकती है, तो ओनली होल नंबर्स के फॉर्म में 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो फॉर एग्जांपल 5x square minus 4x square minus 6x minus 3 is a polynomial in variable x. क्योंकि इसमें x की पावर आप देखोगे फर्स्ट टर्म में क्या है 2, सेकेंड टर्म में ऑल्सो 2, थर्ड टर्म में 1 बेटा 6x के में x की पावर 1 है, फोर्थ टर्म में बेटा -3 ओनली मीन्स x की पावर कितनी होगी 0. एंड दैट्स वाई 2, 1, 0 these are not negative integral powers. That's why it is a polynomial. Now in second expression you can see फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 3/2 है, थर्ड टर्म में x की पावर -2. मीन्स फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है. दैट्स वाई इट इज नॉट अ polynomial. Not a polynomial. And polynomial are denoted by p of x, q of x and r of x. After this we will study about constants. Constants in the polynomial like this: x cube plus x 3x square plus 3x plus 1. The coefficients of x cube, x square, x r, x क्यूब का कोफिशिएंट मतलब उसके साथ इनटू में जो है बेटा कुछ नहीं तो 1. एक्स स्क्वायर के साथ इनटू में क्या है +3, एक्स के साथ इनटू में क्या है +3 ऑल्सो. सो दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेस्पेक्टिवली. एंड +1 लास्ट स्टेप, फोर्थ टर्म जो है +1 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. After this we will study about
degree of a polynomial. Degree of polynomial in one variable. In case of the polynomial in one variable, the highest power of variable is called degree of polynomial. Degree means, always remember this, the highest power of the variable in the given algebraic expression is called degree. गिवन algebraic expression जो भी होगा उसमें x की जो highest power होगी वो होगी degree of the polynomial. Like this, you can see in this expression x की पावर कितनी है बच्चों? 3, 2, 3, 2, 1 and 0. So highest power कितनी आई x की? 3. That's why 3 is known as degree of polynomial. Okay. Now classification of polynomial on the basis of degree. We have 4 different polynomials according to the degree, on the basis of degree. First, अगर डिग्री 1 है बेटा तो पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. अगर फॉर एग्जांपल x प्लस 1 में x की पावर कितनी है? 1. 2x माइनस प्लस 3 इसमें x की पावर कितनी है? 1. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. मीन्स ए स्मॉल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, मतलब ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में होता है. राइट. नाउ नेक्स्ट, फिर 2 डिग्री अगर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल its standard form is ax square plus bx plus c. एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 3. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 4. सो क्लासिफिकेशन of polynomial on the basis of degree. So we have 4 different polynomials in our course. Next, classification of polynomial on the basis of number of terms. अब number of terms के according different types of polynomial. First one is number of terms अगर 1 होगी तो इसको कहा जाएगा मोनोमियल. क्या कहा जाएगा? मोनोमियल. लाइक -5, 3x ओनली, कॉमा, फिर कॉमा 1/3y, ये सब क्या है? मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है. आफ्टर दिस बाइनोमियल. बाइनोमियल में 2 टर्म होगी, 3 + x, x - 5y, इसमें 2 टर्म है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगी, 3 डिफरेंट टर्म्स. ओके. ओके. नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली consisting a constant term is called constant polynomial, like 3. And degree of a non-zero constant polynomial is 0 because इसमें x की पावर कितनी होगी? 0. constant polynomial में x की पावर 0 होगी हमेशा. जीरो polynomial, a polynomial consisting of one term, namely 0 only, is called zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined. जीरो polynomial मतलब 0 only. 0 एक constant value होगी और 0 को कहा जाता है zero polynomial. Right? Now, zeros of the polynomial. Zeros and zero, these are 2 different terms. अब zeros की बात करते हैं बेटा. So zeros means if p of x is a polynomial, मान लीजिए कोई polynomial p of x है, then अगर x के प्लेस पर आप अल्फा पुट करते हैं, मतलब 1 2 3 अल्फा की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 3 कुछ भी हो सकती है, वी से दैट इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन p of alpha is equal to 0. when p of alpha is equal to 0, इट मीन्स जब x की वैल्यू अगर आप अल्फा पुट करते हो गिवन एक्सप्रेशन में और पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाता है? 0. देन this number alpha is called zero of the polynomial, zeros of the polynomial. Right? Okay. And for finding zeros,
of the polynomial p of x, we will apply p of x is equal to 0. p of x is equal to 0 पुट करिए तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी, these are called zeros of the polynomial, right? After this we will study remainder theorem. remainder theorem क्या होता है? if fx be a polynomial of degree greater than equal to 1, मतलब डिग्री हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर 2 3 4 ऐसी होनी चाहिए. ओके, नाउ एंड लेट स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर. स्मॉल ए कोई रियल नंबर है तो एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ ए. कितना आएगा बच्चों? एफ ऑफ ए आएगा. इट मीन्स कि रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आप रिमाइंडर पता कर सकते. कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है, उसमें आप डिवाइड करोगे x माइनस ए से, तो a जो होगा ना उसको आप जब पुट करोगे एफ एक्स में एफ ऑफ ए, तो जो भी बचेगा, जो भी वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए की, वो होगा रिमाइंडर. आप डिवाइड करके भी देखोगे तो भी वही आएगा, और एफ ऑफ ए से डायरेक्टली निकालोगे तो भी वही आएगा. दिस वन इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे. अभी अभी तो ये इंट्रोडक्शन है जस्ट. आप जब इसको एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो वी विल डिस्कस इट in detail. Okay, next, now factor theorem. factor theorem में क्या होता है? fx be a polynomial of degree greater than 1. now f of a is equal to 0. f of a equal to 0, then x minus a is a factor. ये जस्ट उल्टा है रिमाइंडर थ्योरम का. रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था? x माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता था? f of a. इसमें उल्टा कर दिया. अगर f of a निकाला जाए उसकी वैल्यू 0 आ जाती है. इट मीन्स कि x की प्लेस पर, एफ एक्स में x के प्लेस पर अगर आप a मीन्स 1 2 3 कोई भी नंबर रखते हो, -1 -2 कुछ भी 0, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर, 0 के इक्वल करने पर 0 अगर आता है, सॉरी, उसको सिंप्लीफाई करने पर अगर रिमाइंडर कितना आता है? 0. इट मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, राइट? अदरवाइज इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा. इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, उल्टा कर दीजिए अब इसका. अगर एफ ऑफ ए 0 था तो x माइनस ए फैक्टर हो गया था. उल्टा, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो एफ ऑफ ए कितना आएगा? 0. दिस वन, दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्टर थ्योरम. नाउ अभी फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मीन्स होता है, फैक्टर मीन्स होता है इफ p of x is called factor of q of x divides q of x exactly. अगर q of x को p of x से आप डिवाइड करते हो और पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना आता है? 0, देन p of x is called factor of q of x. ओके, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर, किसी डिफरेंट पॉलिनोमियल को, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो फर्स्ट आपका पॉलिनोमियल लाइक p of x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, p of x को आप x माइनस ए से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है. इट मीन्स p of x अगर 0 आ जाता है, इट मीन्स कि it means x minus a is a factor of p of x. Now next, factorization. Factorization is the process in which a given polynomial can be expressed as product of the polynomials, each of degree lesser than that of given polynomial. मतलब जैसे कि मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे कोई गिवन पॉलिनोमियल है, तो अगर आप उसको फैक्टर्स में डिवाइड करते हो तो जो फैक्टर्स की पावर है, डिग्री है, वो हमेशा पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उससे लेस आनी चाहिए और प्रोडक्ट के फॉर्म में रहना चाहिए. तो दीज आर कॉल्ड फैक्टराइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? ओके, नाउ
last topic is some algebraic identities. So let's see. फर्स्ट आइडेंटिटी ये सब एट्थ में आपने पढ़ी हुई है, बस रिकॉल करनी है. एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy plus y square, right? Now second one is x minus a whole square, so you know minus 2xy हो जाएगा, बाकी सब सेम. फिर थर्ड आइडेंटिटी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. Now x plus a x plus b, so you can write it x square plus a plus b into x plus ab. After this, fifth identity is x plus y plus z whole square, so you can remember this x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Sixth identity is x plus y's whole cube, so it will be x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. Okay. Seventh identity is x minus y's whole cube is x cube minus y cube minus 3xy minus x minus y, sorry, into x minus y. इट मीन्स कि जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है उसमें अगर आप प्लस की प्लेस पर माइनस रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब. ओके. नाउ एट्थ एंड लास्ट आइडेंटिटी इज x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, right, will be equal to x plus y plus z in bracket, and in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ओके. ये आपको थोड़ा बड़ा है आपके लिए, लेकिन इसको याद करना है आपको, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं बेटा. ओके. नाउ लास्ट वन इज, अगर मान लीजिए कि इस एट्थ फॉर्मूले में इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो आती है तो आप यहाँ उसको पुट करोगे तो जीरो इंटू एनी नंबर विल बी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो आ जाएगा. और जब माइनस 3xyz को आप साइड चेंज करोगे तो प्लस 3xyz आ जाएगा. दिस वन इज द expression while x plus y plus z is equal to 0. So always remember this. It's